اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، یعنی ہجرت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وقت، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور اپنے تمام گھر والوں کو اپنے علاقے میں سے چلے جانا، چھوڑ دینا، جہاں آسانی سے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں انہی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ یہ آیت عام تمام لوگوں کے لیے ہے، جو تمام مہاجرین کو شامل کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر، اور اسی طرح سے وہ لوگ، وہ مہاجرین جو اپنی قوم کی تکلیفوں سے تنگ آ کر، پہنچائی ہوئی ایذاؤں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے، ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر میں تھے، جنگ بدر اسلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد دوسری ہجری میں ہوئی تھی، 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں تھے، اور وہ ان کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ فوت ہو چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں اور بیٹی پیچھے سے فوت ہو گئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہی ان کی بیٹی کا انتقال ہوا اور ان کو دفن بھی کر دیا گیا۔ آزمائشیں دیکھیں کس قدر ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے، دین کی اشاعت کے لیے نکلے، دین کی سربلندی کے لیے نکلے، کیونکہ پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر 2 ہوئی نا، ایک چھوٹی ہوئی اور پھر وہ اسی جنگ کا واپس بدلہ لینے کے لیے واپس آئے۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو بڑا مسئلہ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ایک جنگ کی مسلمانوں سے، کیونکہ ابھی جنگ بدر میں ان کو ناکامی ہوئی تو وہ پھر چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مزید ابھی ان کو تکلیفیں نہیں پہنچائی، ہم ان سے مال اسباب نہیں لوٹ سکے، ہم وہ سب کچھ لوٹنا چاہتے تھے وہ۔ پھر 3 ہجری میں پھر جنگ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 غزوات میں حصہ لیا تھا، اور دوسری جو جنگ ہوئی اس میں پھر مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش مال غنیمت کی، مسلمان مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں بھی انشاءاللہ، اور جس طرح سے مسلمانوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں کی، اور جن اوقات میں کی اور جن مشکلات میں کی، انشاءاللہ ہم سب کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو طیب رزق اور اچھا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ان کے کاروبار میں، ان کے گھر بار میں، جو وہ چھوڑ آئے تھے ہجرت کر کے، اللہ تعالیٰ ان سب میں فراوانی ان کو عطا فرمائے گا، ان کو طیب اور پاکیزہ رزق عطا کرے گا، رزق حلال عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، آخرت کا ثواب تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ولا اجر الآخرت اکبر، جو آخرت کا اجر ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ حضرت عمر نے جب مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کا وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے، وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل، اور انہوں نے یہ بھی کہا آگے کہ اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کئی زیادہ گنا زیادہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے رب پر ہی بھروسہ کیا، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے ہیں، مردوں کو ہی،
किन को भेजते रहे हैं? मर्दों को ही भेजते रहे हैं, यानी नबूवत मर्दों की तरफ ही हमेशा आई है, जिनकी जानिब वही उतारा करते थे। बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। अहल जिक्र से मुराद अहले किताब हैं, जो पिछले अंबिया और उनकी तारीख से वाकिफ थे। मतलब ये है कि हमने जितने भी रसूल भेजे वो इंसान ही थे, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर इंसान हैं तो ये कोई नई बात नहीं कि तुमको अल्लाह ताला ने इस बशरियत में अल्लाह ताला ने तुम्हें रसालत अता की है। और वो ये गलत बातें कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने वही भेजनी थी तो हम जैसे आम इंसान को क्यों भेजी? अल्लाह ताला तो किसी फरिश्ते को मुकर्रर करता। तो अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं कि उनसे पूछ लो कि पहले भी जितने अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे वो भी बशर ही थे, ना कि वो मलाइका, कोई भी ना था उनमें से। अगर वो फरिश्ते थे तो फिर बेशक इनकार कर देना। अगर वो फरिश्ते, कोई एक भी नबी अल्लाह ताला ने फरिश्तों में भेजा तो फिर उनकी बातों को मान लेना। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम अंबिया इंसानों में से ही भेजे, और अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत की, उन्हीं में से अल्लाह ताला ने नबियों को मबूस फरमाया। अगर वो भी सब इंसान ही थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को ये क्यों नहीं मानते और क्यों इस चीज को जुटलाते हैं? अब देखिए वो क्या कहते थे, हम जैसे बंदे के पास क्यों आई है वही? ये किसी कोई फरिश्ता क्यों नहीं लेकर आया? तो क्या पहले फरिश्ते आते थे? क्या फरिश्ते वही, क्या फरिश्तों के ऊपर किताबें नाजिल हुई? ऐसा तो हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, दलीलों और किताबों के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र किताब हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है, आप इसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। वलअल्लहुम यतफक्करून, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। आपने खोल खोल कर बयान कीजिए, शायद कि लोग गौर व फिक्र करके कुछ समझ जाएं। अफ आमिन लदीना मकरु सय्यिआति अन यखसिफ अल्लाहु बिहिमुल अर्द औ यअतियहुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून। मजीद अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में फरमाते हैं कि बदतरीन बदतरीन मकर करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा दे, या उनके पास ऐसी जगह से अजाब आ जाए जहां का उन्हें वहम व गुमान भी ना हो। क्या वो इस चीज से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता? और यअखुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअजिज़ीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं या उन्हें चलते फिरते अल्लाह पकड़ ले। अल्लाह तो इससे भी, इस पर भी कादिर है कि वो इस चीज से भी बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ताला फी तक़ल्लुबिहिम, कि उनको चलते फिरते पकड़ ले। तो वो तो अल्लाह ताला को किसी सूरत में भी आजिज नहीं कर सकते। चलते फिरते से मुराद क्या है कि जब तुम तिजारत में हो, कारोबार के लिए सफर पर जाओ, जब तुम कारोबार के फरोग देने के लिए मुख्तलिफ हीले और तरीके इख्तियार करो, या रात को आराम करने के लिए अपने बिस्तरों पर जाओ, या तकल्लुबुन का मानी जो मुख्तलिफ मफहूम है। अल्लाह ताला जब चाहे इन सूरतों में से, तुम में से जब चाहे तुम पर अजाब मुसल्लत कर दे, और जब चाहे तुम पर कोई भी अजाब तारी कर सकता है, और तुम उसको आजिज करने वाले हरगिज नहीं हो। तुम अल्लाह का हाथ नहीं रोक सकते, तुम उसको आजिज नहीं कर सकते। औ याखुज़हुम अला तखव्वुफिन, अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं या उन्हें डरा धमका कर पकड़ ले, या उनको डरा कर भी, उनको खौफ दिलाकर भी पकड़ ले। फ़इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, यकीनन तुम्हारा रब आला शफकत और इंतहाई रहम करने वाला है। तखव्वुफिन का मतलब ये भी हो सकता है कि पहले से ही दिल में अजाब और मुआखजे का डर हो। जिस तरह बाज दफा इंसान किसी बड़े गुनाह का इर्तिकाब तो कर बैठता है तो खौफ महसूस करता है कि कहीं अल्लाह मेरी गिरफ्त ना कर ले, चनाचे बाज दफा इस तरह भी मुआखजा हो जाता है कि वो गुनाहों पर फौरन मुआखजा नहीं करता बल्कि मोहलत देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस तुम्हारा रब आला शफकत और इंतहाई रहम करने वाला है, फौरन नहीं पकड़ रहा तुम्हें। अल्लाह ताला तुम्हें मोहलत दिए जा रहा है। बहुत से लोगों को तौबा और इस्तगफार की तौफीक भी नसीब हो जाती है, अल्लाह ताला माफ भी कर देता है। अल्लाह ताला इसीलिए खौफ को दिल में मुब्तला करता है कि इंसान डर जाए और गुनाहों से बच जाए।
अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइली सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। क्या उन्होंने अल्लाह ताला की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा? अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इन लोगों ने, अब वो पक्के के पक्के मुनकिर हैं, क्या उन्होंने अल्लाह ताला की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा कि उसके साए दाएं बाएं झुक कर अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद होते हैं। हर चीज का साया अल्लाह ताला को सजदा करता है, चाहे दरख्त हो, इंसान हो, जानवर हो। हर चीज का साया अल्लाह ताला को सजदा करता है। साया भी अल्लाह ताला को सजदा करता है। तो बदकिस्मत है हम वो बदकिस्मत इंसान है जो अल्लाह ताला के आगे सजदा करने के लिए सर नहीं झुकाते और आजिज़ी का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला की अजमत और कबीराई और उसकी जलालत का शान को बयान किया जा रहा है कि हर चीज उसके सामने झुकी हुई और मती है। साया जमीन पर है, चाहे वो इंसान हो, हैवानात हो, जिन हो, फरिश्ते हो, कोई भी हो। हर वो चीज जिसका साया है और उसका साया दाएं बाएं झुकता है, तो वो सुबह और शाम अपने साये के साथ अल्लाह को सजदा करती है। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि जब सूरज ढलता है तो हर चीज अल्लाह के सामने सजदा रेस हो जाती है। हर चीज अल्लाह के आगे सजदा करती है। सुबह के वक्त आपने देखा परिंदे कितना चहचहाते, कितना शोर मचाते हैं तहज्जुद के टाइम पर। इंसान को फौरन पता लग जाता है कि तहज्जुद का वक्त है, क्योंकि फौरन सबसे पहले ये परिंदे, हालांकि बाहर रोशनी नहीं होती, तो सबसे पहले ची 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 करना शुरू कर देते हैं। क्यों? अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना शुरू कर देते हैं। फजर के वक्त तो वो अपनी अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं, और उससे पहले तहज्जुद के वक्त में वो फौरन जिक्र कर देखें। उनको भी अकल और शऊर है कि घर से निकल रिस्क के लिए निकलने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लें। हम कैसे अल्लाह का जिक्र किए बगैर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं? हम कैसे अल्लाह ताला को याद किए बगैर अपने घरों से बाहर कदम रख लेते हैं? हम कैसे उसको राजी किए बगैर, उससे मुलाकात किए बगैर घरों से बाहर चले जाते हैं? ये खौफ भी नहीं होता? क्या मालूम वापस पलट कर ही ना आए, क्या मालूम अभी जिंदा निकल रहे हैं, वापस जिंदा कदम ही ना आए। परिंदों को भी खौफ है। घर से निकल रहे हैं तो पहले रिस्क की तलाश में निकल रहे हैं, तो अल्लाह से मांग कर निकलते हैं, अल्लाह की हम्द और सना बयान करके निकलते हैं। और जब वापस रात को लौटते हैं उस वक्त फिर से जिक्र करते हैं शुक्र का। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारा पेट भर के हम वापस आ रहे हैं। कहाँ से रिस्क तलाश करके परिंदे आते हैं, अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देते। इन परिंदों के बच्चे कोई भी भूख से नहीं मरते हैं। कोई ऊपर से गिर के मर गया तो मर गया, भूख से कोई नहीं मरता किसी का परिंदे का बच्चा। ये आप लोग स्ट्रे कैट्स देखते हैं, डॉग्स देखते हैं, उनके बच्चे भूखे नहीं मरते। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला हर किसी को रिस्क देता है। हमें फिक्र है कि हमारे बच्चे भूखे ना मर जाएं। हमें तवक्कल नहीं अल्लाह पर। उन परिंदों को भी तवक्कल है जो एक दाना भी जमा नहीं कर सकते, उनको भी तवक्कल है अल्लाह पर। हमें तवक्कल नहीं। जो खुद हाथ पांव मार सकते हैं, उनके तो बच्चे चल भी नहीं सकते, उड़ भी नहीं सकते, मुंह भी नहीं खोल सकते। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मिन दाब्बतिन व मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून। यकीनन आसमान और जमीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने सजदे करते हैं और जरा भी तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफअलून मा युअमरून। और अपने रब से जो उनके ऊपर है उससे, वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मिन दाब्बतिन व मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफअलून मा युअमरून। और अपने रब से जो उनके ऊपर है कप कपाते रहते हैं। कप कपाते रहते हैं डर और खौफ से। किन की बात की जा रही है? मिन दाब्बातिन, जानदारों की, व मलाइकतु, और फरिश्ते भी।
इतना हर वक्त सजदारेज रहते हैं, जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में है, हर जानदार और तमाम के तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के आगे सजदारेज रहते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं करते और ना ही इनकार करते हैं। हर घर में कोई ना कोई ऐसा मौजूद जरूर होता है जो, हर घर में कोई ना कोई ऐसा लाजमी मौजूद होता है जो नमाज का पाबंद नहीं होता। हर घर में कोई ना कोई ऐसा मौजूद जरूर होता है, कोई ना किसी की आजमाइश के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे कायनात हम हमारे सबके घरों में सब घर वालों को 5 वक्त का नमाजी बनाए और हम सबकी नमाजों में खुशू और खुशू पैदा करे। रब्बे कायनात हमारी आंखें बंद होने से पहले ही हमें अपने रास्ते के लिए खालिस कर ले। और रब्बे कायनात हम सबको हम सबको अपना ताबेदार बनाए, हमारे अहल अयाल को अपना ताबेदार बनाए, हमारे आने वाली नस्लों को अपने ताबेदार बनाए। और ये ना सिर्फ अल्लाह को हर वक्त सजदा भी करते हैं, और वो जो रब उनके ऊपर है उससे, उसके खौफ से कपकपाते रहते हैं, डरते रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी अपना खौफ डाले और अपनी मोहब्बत से हमारे दिलों को रोशन कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।